yeah, hello guys. I am Pranjali and I'll just give a short introduction about myself. So basically, I am a writer. I am an author. I have written a book. I am 17 right now and I published my book when I was 16. कुछ बड़ी धाड़ नहीं मार दी है मैंने ठीक है. Just don't take me as a very formal person. I was among you. I am among you. So basically today I want this session to be an interactive session. So as much as questions you want to ask me, I want answers from all of you. So I'll ask you a few basic questions and I really want and I'm wanting that this crowd is one of the best intellectual public I've ever seen in my life. It's actually my honor to be with you. Thank you Nandu sir, thank you everyone who has invited me here. Okay, thank you. Is my voice clear? I think at the back, is it audible? Okay, so basically I'll start my thing. So the name of my book is Nameless, which I started writing when I was in 9th. Any writer has a backstory. It might be any kind of a story. It might be a depressing one. It might be even a love story. Who knows? A writer can write anything. So my backstory has basically been a depressing one. When I was in 6th, 7th grade, due to some of many personal problems, my mind got all clogged. You know that feeling, that वो feeling आती है तुम्हें कि अब कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम बस ऐसे बोलते ना जंड हो गई है, ऐसा हो गया था. It was all a mess up. It was like there is a deep spaceless pool and you're going to drown in it. You're drowning in it. तुम्हें समझ नहीं आ रहा where you're going, हाथ पैर मार रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ऐसा होता है. It happens. I think all of you must have experienced it. कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो. तुम्हें ऐसा लग रहा है सुबह उठना है, यहाँ कॉलेज जाना है, कॉलेज में कुछ समझ तो आता नहीं है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा. ऐसा हो गया था मेरे साथ. When I was in my 9th, जा रहे थे, डूब रहे थे पानी के अंदर, सब खत्म हो गया था ऐसा लग रहा था. एक मोमेंट आई, दैट वन मोमेंट. उस मोमेंट पे सडनली आई गॉट अ थ्रस्ट. दैट थ्रस्ट फॉर मी वॉज माई राइटिंग. आई हैड अ पेपर इन माई हैंड एंड आई हैड अ पेंसिल. आई स्टार्टेड ऑफ विद अ पेंसिल. वो भी इतनी छोटी सी थी, पता है वो हम रखते हैं थोड़ी सी शार्प करके, थोड़ी सी रहने देते हैं. दैट पेंसिल. आई स्टार्टेड राइटिंग. I did not know where the words came from. Maybe my heart, maybe my soul. I don't even know. It wasn't like ऐसा कुछ सोच के नहीं लिख रहे थे कि हाँ भाई चलो स्टोरी लिख देनी है, ये हो रहा है. And by the way, I'll tell you, I do not write stories. I write poetry. All of my book is based purely on poetry. So yeah, I started writing. एक लफ्ज निकला, दो लफ्ज निकले. Suddenly it all started to make sense. जो अंदर भरा हुआ था ऐसा लग रहा है कि सब निकल रहा है. It all felt that blackness, that darkness that one person contains, that all faded through me and it went on my papers. So when I started writing in 9th, it was all about darkness. That dark, deep emotions, वो criticism लोगों के लिए कि क्यों है ऐसा लाइफ में, क्या ये हो रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे समझ ही क्यों नहीं पा रहा. I'll be sitting at my home and I'm like, क्यों मेरे को कोई समझ नहीं रहा है, क्या हो गया, इतना बुरा है मेरे में कुछ. मेरे को कोई आंसर नहीं मिला. आई नॉट गेट एन आंसर फॉर दैट. आई रोट एवरीथिंग. मैंने लिखा, पेपर्स में लिखा. पता है मेरे एग्जाम हॉल में मेरे को है ना कुछ स्ट्राइक हुआ सडनली. आई स्टार्टेड राइटिंग. आंसर शीट पे मैंने पोएम लिखी हुई है बैक में. फिर वो टीचर के पास मेरे को भाग के जाना पड़ा, मैम मेरे को आंसर शीट प्लीज़ वापस देना. आई टुक दैट पेपर. कहीं भी आई हैव इवन रिटन ऑन माई हैंड्स जब मेरे को पेपर नहीं मिला. दैट वॉज माई पैशन. दैट उतना डिप्रेस हो गई थी मैं कि मैंने पेपर पे लिख दिया, हाथ पे लिख दिया, कहीं भी मिला लिख दिया. Then I met my mentor. She is a person who's with me and she has always been. Besides my parents, my mom is obviously very supportive of me, my dad is supportive of me. But I met that person. She is my mentor, she is my teacher. उसने मेरे को ऐसे समझ लिया ना, जैसे you know there are two puzzles, they fix themselves. ऐसे करके समझ लिया. एंड तब मेरे को शौक लगा कि कोई मेरे को इतना अच्छे से कैसे समझ सकता है. एंड दैट वॉज माई जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. सडनली आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग गुड. मेरे को अच्छा ही दिखने लगी लोगों में, मेरे खुद में इतना अच्छा ही दिख रही थी
कि मेरे को फिर पता चला कि यार इतनी डार्कनेस है, उससे तुम एक जगह पे और जा सकते हो. देयर इज अनदर स्टेज फॉर इट. ऐसा नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में एक ही जगह पर रुक जाने वाले हो. यू आर गोइंग टू ऑलवेज मूव ऑन. एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस. इट टेक्स टाइम बट इट डज हैपन. सो दैट इज व्हाट आई बेसिकली रोट अबाउट. सो स्टार्टिंग जब आप पन्नों के वहाँ जाएंगे मेरी बुक में, आपको सिर्फ वो डार्कनेस दिखेगी. But towards a few pages, then you'll find out that what a person I was and what I became. That light, and it really felt good. तुम्हें अच्छा लगता है. And then suddenly I never knew that I'll publish a book. I started writing. वो मेरा it was a personal thing. जैसे लोग डायरी लिखते हैं ना, मैंने वैसे लिखा था. किसी को बताती थी नहीं थी मैं कि मैंने इतना सारा लिखा हुआ है. नो वन इवन न्यू कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड प्रांजलि दवे जो लिखती है. मैंने कभी दिखाने के लिए नहीं लिखा था. मैं सारा आई एम अ पर्सन हु वाज अ प्योर एस्केपिस्ट. आई यूज्ड टू एस्केप अ लॉट. कुछ भी चीज़ हो भाग जाओ वहाँ से. फेस नहीं करती थी मैं कुछ चीज़. मेरे को बहुत डर लगता था उस चीज़ में, तो मैं कभी नहीं फेस कर पाती थी कुछ भी. मैं भाग जाती थी. सेम वे I do not want anyone to know that I have such dark, deep emotions in me. That's why I never actually told anyone that I am a writer. Neither did I tell anyone that I write this thing. And I had that folder. The folder, I named it as Nameless. And I kept it with me since my 9th standard. Suddenly one day when I was in my mid-11th, a person got hold of the folder. उसने वो फोल्डर ले लिया मेरी बैग में से. अब तो होता ही है, मस्ती होते हैं, लोग ऐसे बैग में देखते हैं और ले लेते हैं. The person did it to me. उसने देखी मेरी फोल्डर. He was crying the moment he read everything. And I'm like, तुम क्यों रो रहे हो भाई? And he's like, these things connect to me on some other personal level. And I'm like, मैंने कभी नहीं लिखा कि मैं किसी और को दिखाऊं या ऐसा है. I do not know why you took the book, but if it is connecting to you, then I think it is time that I should publish it. कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे यहाँ पे. Those all who have faced depression in their life, जिनको कुछ at a point नहीं समझ में आया क्या हो रहा है. And then at that point, I think what they need is Nameless. And there is a very, a story about why I named my book as Nameless. When I was in 9th, as I have told you all, I started writing. मेरे पास कुछ था नहीं स्टोर करने के लिए. So I just got a folder. घर में जो पड़ा था वो एकदम रद्दी सा फोल्डर. मैंने उसके ऊपर एक पेपर चिपका दिया. फिर मैं सोच रही हूँ मैं इसका नाम क्या रखूँ. समझ तो आ नहीं रहा है, पता नहीं है मैं लिखती कैसी हूँ. I just wrote Nameless on it. And then all those poetry, it made sense. And then I understood कि कुछ at any point, कोई भी पॉइंट पे तुम नहीं बता सकते कि what is your emotion. If anyone sitting here might be happy, but what is that extent of happiness? जैसे मेरी अभी बहुत I was in fear कि मेरे को इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना है. But till what extent? What is that fear? कुछ लोग होंगे सैडनेस में अपनी नहीं अच्छा फील कर रहे होंगे, पर क्या तुम उसको बोल सकते हो एग्जैक्टली कि तुम क्या फील कर रहे हो? Of course not. So that is the thing. Emotions can never be named, and that is why Nameless. ये था पूरा मेरा, ठीक है. And now the basic thing that what I came for was when I saw people like me, they were very afraid to publish their things, whatever they write. उनको लगता है यार लोग जज करेंगे मेरे को कि मैं ऐसा सब लिखता हूँ. A friend of mine used to write love stories when he was in 9th. He once came to me and told me, यार तूने तेरी बुक पब्लिश कर दी, तेरे में हिम्मत कैसे आई? I'm like, हिम्मत की क्या बात है इसमें? I do not know. I just felt like I needed to connect to people and I did it. And he's like, no. कोई मेरी बुक पढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं लफंगा हूँ. ये वर्ड्स उसको बोले गए हैं क्योंकि तू ऐसा लिखता है इसलिए तू लफंगा है. Because you write love stories, इसलिए तुम ऐसे हो. Whereas 70% of the public love to read love stories. अब ये तो हिपोक्रेसी हो गई भाई कि तुम राइटर्स को क्रिटिसाइज करो कि तुम लव स्टोरीज लिख रहे हो पर तुम पढ़ते तो वही हो. I told it to him कि why are you so scared कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है. They are like, I have written this about मेरा ब्रेकअप हो गया और मैंने लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है. Is anyone यहाँ पे बैठा हुआ एक्सेप्ट कर सकते कि नहीं उसकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. एंड व्हाट इज ब्रेकअप?
ब्रेकअप इज नथिंग. तुम्हारा किसी पर्सन के साथ अगर अब तुम नहीं बात कर रहे हो, दैट इज बेसिकली ब्रेकअप. तुम्हारी मॉम के साथ ब्रेकअप हो सकता है, तुम्हारे टीचर के साथ ब्रेकअप हो सकता है, दैट इज ब्रेकअप. बट वी हैव मेड इट सच अ बैड टर्म कि पीपल आर अफ्रेड टू यूज इट. व्हेनेवर पीपल राइट लव स्टोरीज दे आर जज्ड कि ये तो देखो शायरिया लिख रहा है, पागल हो गए, पढ़ाई की उम्र में ये सब कर रहा है, ये उसको सुनाए तो नहीं. आई थिंक अगर तुम में से कोई भी राइटर होगा जो ये सब लिखता होगा, उसने सुना ही होगा ये चीज़ कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, दिस इज नॉट वर्थ इट. क्या करोगे, राइटर बन जाओगे, पूरी लाइफ लिखते रहोगे, क्या पैसे मिलेंगे तुम्हें उससे. सही है, चेतन भगत जैसे लोग कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं. सो बेसिकली आई टोल्ड हिम कि लेट पीपल जज यू अलोन. You need to write it. तुम जो करते हो, you need to express it. The basic thing about human is that we have got the quality to express. अगर कोई बंदर है, वो दिखा सकता है कि वो गुस्से में है, शायद दिखा भी सकता है क्योंकि हम उतने दिमाग वाले के हमें समझ आए कि हाँ भाई वो गुस्सा है. We are sitting here, we can cry. We have that anguish in ourselves. We have that frustration कि हम दिखा सकते हैं. We have the quality to express. Then why hide it? अगर तुम राइटिंग से वो एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर तुम बोल के वो एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम गा के एक्सप्रेस कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, व्हाई हाइड. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपने एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, इफ यू डू नॉट टेक अनदर स्टेप, आर यू गोइंग टू एक्चुअली लिव योर लाइफ. तुम अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ गए, लोग क्या सोचेंगे उसकी वजह से, एंड यू आर ऑल ऑन इट, देन डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गेट ऑन सम अदर लेवल. Of course not. नहीं कर पाओगे. You'll be stuck in that thing. You'll be stuck in a loophole. And that's what actually happens. I'll tell you one more thing. 70% of their people, okay, and now I need an answer to this question, ठीक है? Who all sitting here have met mediocre people in their life? Average people, ना बहुत अच्छे, ना बहुत एकदम कम. Average people. I really want people to raise their hands. तुम में से किन लोगों ने average लोग मिले हैं? किन किन को मिले एवरेज लोग? एंड हु थिंक्स कि वो खुद एवरेज है? सी एग्जैक्टली माय पॉइंट. सुबह उठ के मिरर में जाके खुद को ड्रेसअप करते हैं 2 रीजन के लिए. शायद तुम्हें ड्रेसअप होना पसंद है, दूसरा शायद वो में से अच्छी दिख गई तो अच्छा तो भाई दिखना पड़ेगा उससे. क्यों? बिकॉज वी आर सो बाउंड टू इट. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. खुद को मीडियोकर बना दिया, एवरेज है, हमसे कुछ नहीं हो पाने वाला. क्यों? क्योंकि दुनिया ये सोचती है कि अगर तुम पढ़ाई में नहीं अच्छे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. सुबह जाओ मिरर के सामने, देखते हो खुद को, अच्छा लगता है क्या? किन किन को अच्छा लगता है खुद को मिरर के सामने देख के? ये लोग हैं जिनमें कॉन्फिडेंस है, एंड दीज आर द पीपल हु कैन चेंज समथिंग. एंड दोज पीपल जिनको ऐसे देख के मिरर है, चलो छोड़ो, हो गया, चलो अपने तो हम तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है. दे हैव दैट थिंग इन देयर माइंड, और ये उनकी गलती नहीं है. दैट्स वन मेन थिंग. लोग बोलते हैं ना तुम डिप्रेशन में आ गए, तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है. नहीं होता ऐसा. लोग कुछ करते हैं इसलिए तुम पे असर आती है. यू आर एवरेज बिकॉज एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ लोगों ने तुम्हें एवरेज बोला हुआ है कि भाई तुम एवरेज हो, पढ़ाई में नहीं अच्छे, नहीं कर सकते कुछ, तो नहीं करते. एंड में तो ऐसा ही हो जाता है कि उनको नहीं पसंद मैं कुछ करूँ, उनको ऐसा लग रहा है मैं एवरेज हूँ, भाई मैं एवरेज हूँ, आई एम हैप्पी लिविंग एन एवरेज लाइफ. Then at that point you need a thrust. The thrust I got, the thrust for writing, that is the thrust every one of you needs. That thrust in your life कि नहीं तुम एवरेज नहीं हो, तुम लिखो, तुम शायद गिटार बजा सकते हो, who knows. मेरे को नहीं पता था I'll be writer, मुझे पता ही नहीं था I'll be writing. I never imagined myself as a writer, even never imagined myself as a student. पढ़ाई में मैं उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं थी. तो फिर क्या हुआ? What happened? Why did I come out of it? And people like us are still caught in it. Because I had a mind, I thought about it. कि यार बोलेंगे, काम है उनका बोलना.
हम कुछ नहीं करने वाले उसके बारे में। सम ऑफ द पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ। कभी कभार क्या होता है कि जब हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, कोई होता नहीं जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, एंड में पेरेंट्स आते हैं, तो वी टेल आवर पेरेंट्स कि पापा इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेरे को गिटार बजाना है। और उनके एक्सप्रेशन, बेटा तू मर जा, ऐसा कर, तू इंजीनियरिंग कर या मर जा, और कुछ मत कर लाइफ में। दैट इज द बेसिक थिंग। ये पेरेंट्स की सोच है ये, और वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ये लोगों की प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम। सब ऐसा ही समझते हैं, यही करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कहीं और आगे वहां से थोड़ी निकल गए तो भाई क्या कर दिया तुमने, लाइफ बिगाड़ दी तुमने अपनी। अभी भी व्हेन आई सी पीपल ना, दे टेल मी, यार तुम तो इतने स्मार्ट थे, तुम क्यों राइटर बन गए? डज इट मेक सेंस? तुम स्मार्ट थे, तुम क्यों राइटर बन गए? तो क्या राइटर लोग पागल होते हैं? राइटर लोग पागल होते हैं। दे हैव दैट पैशन, दैट पागलपन लिखने के लिए। पर आई टेल यू वन थिंग, they are far smarter than any of you can even imagine. They have a world beyond their imagination, beyond your own imagination. उनका पूरा दुनिया ही अलग होती है। अगर कभी किसी राइटर के साथ तुम बात करो, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी तो ये दुनिया में ही नहीं रहता, कुछ अलग ही है, अलग बात करता है। तुम उस पर मैच ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बाउंड्री जो तुमने सेट की है वो उसने फ्री कर दी। He does not think about anything. That is basically what we want from the youth of the country. अब देखो, मैं तो अभी तक इतनी यूथ हुई नहीं, मैं हूँ 17 की, ठीक है। You are the people who are actually going to do something more in your life because you have the opportunity. तुम लोग इतनी अच्छी कॉलेज में हो, इंजीनियर्स बनने वाले हो भाई, you can do everything. So इसलिए people like Nandu sir who want to bring a change, they are trying कि कुछ हमारे जैसे लोग जो थोड़े साइड में से निकल गए, वो आके तुमसे बात करें कि भाई तुम निकल सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैंने किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। क्या किया? मेरे को फील हुआ, लिखा, और तो कुछ किया नहीं। इसमें तो मेरे को स्टेज भी नहीं चाहिए था बोलने के लिए कि मेरे को स्टेज फियर हो जाए, कि मेरे को डांस करना पड़े, मेरे को सिंग करना पड़े, कुछ नहीं। एक रूम में एक कोने में बैठ के मैंने सिर्फ लिखा है, सिर्फ लिखा। और वो जो लिखा, मुझे नहीं पता था कि वो इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। आई हैव मेट पीपल हु टेल मी, जब मेरा मूड ऑफ होता है, आई रीड योर बुक। व्हाई? बिकॉज इट फील्स गुड कि सिर्फ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, एंड दे हैड द गट्स टू मूव आउट ऑफ इट। दैट इज व्हाट दे से टू मी। और तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि यार लोगों ने बोल दिया बड़े आदमी बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है यार, तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। दैट इज द मेन थिंग। आई लाइक टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू हियर थिंक दैट दे आर गुड एट राइटिंग और इवन वांट टू बिकम राइटर्स हियर? प्लीज टेल मी। एनी एल्स? नो वन वांट्स टू बी अ राइटर हियर? किसी को लिखना, शायरियाँ, 2 लफ्ज लिखना भी है ना, लिखना ही होता है अगर दिल से लिखो। एक वर्ड लिख दो, ठीक है, कोई भी एक वर्ड लिख लिया मैंने, चलो एट द मोमेंट आई से आई हैव रिटन ट्रस्ट, पर वो जो इमोशन से मैंने ट्रस्ट लिखा। शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ कुछ कर लिया, बैक बिचिंग कर ली, इसलिए मैंने ट्रस्ट लिखा है। दैट शी डिवॉइडेड मी ऑफ ट्रस्ट, दैट इज व्हाई आई रोट ट्रस्ट। सो वेल व्हाट इज दैट? दैट इज राइटिंग। तुम 2 शब्द लिख रहे हो, तुम 2 लाइनें लिख रहे हो, दैट इज राइटिंग। पर लोग डर जाते हैं कि व्हाट इफ मेरी राइटिंग लोगों को पसंद नहीं आई। अपने लिए लिखो, तुम पढ़ो, सेटिस्फाई हो जाओ। और तुम लोगों को कितना जानते हो? आउट ऑफ 7 मिलियन पीपल तुम कितनों को जानते हो? 2000, 20,000, 50,000। उनमें से शायद तुम्हें 3 जन ने ऐसा बोल दिया कि तुम नहीं अच्छा लिखते, मान लिया तुमने, बंद कर दिया लिखना, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाई में ही ध्यान दे देता हूँ, ये सब बकवास फालतू चीजें। तुम्हें ही प्रॉब्लम है। वो 3 लोग और 30 जन जो जाको बोल देंगे उनको कि नहीं तुम भी अच्छा नहीं लिखते, और वो 30 जन और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उनसे, छोड़ देंगे लिखना। क्यों? उसने कहा मुझे, और उसका दिमाग क्या
IQ भी उसका नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। ऐसे लोगों को हम मान रहे हैं, ऐसे लोगों की बात सुन रहे हैं। दे डोंट इवन डिजर्व। तुम इतने अच्छे जब बन सकते हो, गॉड नोस तुम्हारे बाजू वाला कल एक बड़ा राइटर बन गया तो यू नेवर नो। मुझे भी जो लोग मेरे बाजू में बैठे थे वो मेरे को ये बोलते हैं, भाई तू कब से लिख रही है, तू लिखती है, ये क्या हो गया? So it's a shock for everyone. So all you have to do, take out the fear, take out that thing कि लोग तुम्हें judge करेंगे. Get out of it. And not just for a writer. If you want to do it like, तुम्हें शायद कुछ और पसंद हो सकता है. Anyone wants to become a stand-up comedian. तुम्हें comedy करनी है. You want to become a photographer. The person here, I saw him. He's an extremely talented photographer. He has the guts to stand there. And he did his photography तुम सबके सामने. अगर कोई और होता ना, I have a friend of mine जो इतनी बेहद अच्छी फोटोग्राफी करता है, वो लोगों के सामने आने से डरता है कि लोग उसको बोलेंगे और एक बंदा के कैमरा उठा के खुद को फोटोग्राफर समझता है। ये सुना है। और ये कभी कभार मैंने भी शायद किसी को बोल दिया होगा कि ये तो क्या है, इसको तो आती भी नहीं है फोटोग्राफी, कैमरा लेके आ गया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो उसको कितना इन्फ्लुएंस कर देगा। तुम्हारा एक सेंटेंस किसी की पूरी लाइफ बिगाड़ सकता है और तुम्हें नहीं पता होता कि तुम तो अपनी मस्ती में होते हो, पर वो जो इंसान होता है, जैसे तुम में से कोई, आई जस्ट वांट पीपल टू रेज देयर हैंड्स इफ दे फील कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समबडी हैज इन्फ्लुएंस्ड देयर लाइफ। किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिससे तुम कुछ चीज नहीं कर रहे हो। आई एम अ पर्सन, मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया था, मैंने वो छोड़ दिया करना। फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार गलत है, बहुत गलत है। खुद से लड़ाई कर रहे हो तुम, किसके लिए? किसी थर्ड पर्सन के लिए। उससे बेटर इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट। कुछ लोग मैथ विज होते हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, पर लोग डरते हैं ऐसे बोलने में कि मैथ्स में को अच्छी आती है। व्हेयरएज इट्स एकेडमिक थिंग। एकेडमिक्स में जहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनको अच्छा आता है पढ़ना, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी लोग जिनको वो चीज़ आती है वो डरते हैं कि लोग उनको बोलेंगे दीज पीपल आर नर्ड्स, इनको पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं है। ऐसा भी बोलने वाले बहुत होते हैं कि ये तो देखो, क्या उसका क्या नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ वो ऐसे तेल लगा के चोमू बन के आ गया, चोमू बन के आया है वो। दैट इज व्हाट पीपल से। सो अब जो पीपल आर ऑलरेडी इन द एकेडमिक थिंग, तुम सोचते हो कि तुम अगर एक आर्टिस्ट हो और कुछ लोग हैं जो एकेडमी के लिए बहुत परफेक्ट है, वो लोग भी डरते हैं खुद को एक्सेप्ट करने में। तो ये प्रॉब्लम किसकी हुई? हमारी खुद की, उस इंसान की, या फिर लोगों और दुनिया की? वो दुनिया जो एकेडमिशियंस को भी ऐसा फील करा सकती है कि यू आर अ नर्ड, यू आर अ गीक, तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें लाइफ में कुछ और आता ही नहीं है, क्या करेंगे? और हमारे जैसे आर्टिस्ट लोग भी सुनना पड़ता है। सुनना तो सबको है ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोलने वाले। अब वो तुम पे है कि तुम सुनो और उसको अपने दिमाग में रखो, जहन में उतार रहे हो या उसको जाने दे। इट इज ऑलवेज अप टू यू। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज ऑलवेज अप टू यू। सो बेसिकली दैट इज व्हाट ऑल आई हैव टू से हियर, स्टैंडिंग हियर। एंड नॉट बिकॉज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने के लिए, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन ऑफ यू। मेरे को दिख रहा है कि जो लोग आंखें में से मिला नहीं पा रहे, नीचे झुक के देख रहे, समझ में आता है मुझे कि तुम वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। दैट इज वाई आई रियली लाइक टू स्पीक टू पीपल, आई रियली लाइक टू इंटरैक्ट, क्योंकि आई सी माई सेल्फ इन देम। मैं देख रही हूँ यहाँ पर 2 लोग नहीं आंखें मिला पा रहे हैं मुझसे, या 2 लोग बाजू वाले को बोल रहे हैं क्या बकवास कर रही है। और मैं भी ऐसी ही थी, जब कोई आता था स्पीच बोलने, मैं नहीं सुनती थी उसका, क्या बकवास है, क्या बोल रही है, कहाँ आ गए, चलो कॉलेज के फ्री टाइम आ गया, चलो सुन लेते हैं। किया हुआ है मैंने ये सब। But when you actually listen to that person and when you get to interact with that person, तुम्हें लगता है जब कि हाँ भाई चलो कोई है जिससे तुम बात कर सकते हो, that's a good feeling. So that is why I am here. Not because I am a writer and I'm here that I want all of you to read my book or something like that. No. I really want all of you to question me, bombard करो मुझे कि कैसे मैंने किया. If there's anything
Any question? I'm here to answer your questions. Yeah, I got a question. Yes, sir. वो डार्कनेस वाली चीज क्या हुई थी एक्चुअली, जो इन लोगों के साथ भी होता होगा शायद? What's that actually, and how to come up from that phase? Well, the darkness thing that I faced was a very personal thing. अब क्या होता है कि लाइफ में क्या हो जाता है कभी कभार के ब्रेकअप हो जाता है ना. मेरे पेरेंट्स कैसे ब्रेकअप हो गया था. I got divorced. अब कोई और सुनता तो कितना शॉकिंग लगता है. नहीं, मेरे पेरेंट्स डिवोर्स है, लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा अगर किसी को पता चल जाएगा कि माय पेरेंट्स आर नॉट टुगेदर, कैसा लगेगा. दैट थिंग हैड अ प्रेशर ऑन मी. डाल दिया, मेरे को धकेल दिया अंदर पूरा का पूरा. दैट थिंग वॉज माई डार्कनेस. देन आई मेट अ वेरी नाइस पीपल. ऐसे ही जगह पे आई मेट समवन, a friend, a teacher, a mentor, my ma'am. I went to her, told my story to her. She gave me a solution to it because I talked, because I interacted, because I accepted कि हाँ मेरी लाइफ में है darkness, that I am a dark person. मैं थी ऐसे कोने में बैठ के ना बस बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान. जोन आउट कहते हैं ना, जैसे जोन आउट होना. तुम सामने वाले को देख रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, अपनी दुनिया में तुम मस्त हो. दैट इज वॉट जोन आउट मीन्स. मेरा ऐसा ही था. लोग मेरे को ना ऐसे उड़ाते थे, मेरी क्या कर रही है ऐसे साइड पे बैठ के, पूरा दिन रोती रहती है, उसका मुंह तो देखो उतर गया है. बिकॉज नो वन न्यू अबाउट माई प्रॉब्लम्स. अगर उनको पता चलता दे वुड हैव सिंपथाइज्ड विथ मी. उनको मेरी प्रॉब्लम सुन के रोना आ जाता. आई डू नॉट वांट दैट. मैं ऐसी कोई नहीं हूँ कि कोई मेरे पे वो क्या कहते हैं मेरी बातों पे रोए. इफ देर इज अ सिचुएशन इन योर लाइफ, व्हाट वुड यू लाइक कि कोई तुम पे तरस रहम खाए. यू स्टैंड देयर एंड यू शो द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट समथिंग दैट एनीवन सिटिंग हियर डज नॉट. ऑफ कोर्स यहाँ में कितने लोगों को लगता है कि कोई तुम पे तरस खाए तो तुम्हें अच्छा लगता है. कोई नहीं, कोई आके ऐसे हो जाएगा ठीक, चल. Your studies over writing. My studies over writing. I'll definitely choose writing. पढ़ाई से मेरे को बहुत मतलब है, पर पढ़ाई मुझसे मतलब नहीं रखती है. पता नहीं क्यों, बनती नहीं है हमारी ज़्यादा. Don't get fear that you are not maybe fulfilling your parents' expectations. My parents had one expectation in their life कि मैं खुद के पैरों पे खड़ी रहूँ. And I stood up to their expectations कि आज I am earning on my own. मेरी बुक से बिकती है, मेरे को मिलते हैं पैसे. That is where I stood up. Now the one thing about studying is, what is the definition of your studying? कॉलेज में जाना, फिर PhD करना. मेरे लिए पता है स्टडिंग क्या है. कोई भी किताब खोल के पढ़ लेना. उतरा दिमाग में अच्छा है, नहीं उतरा और 2-3 किताब लाओ उसी टॉपिक की, वो पढ़ाई है मेरे लिए. मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा है, मेरे शक्ल से लगता है. लिटरेचर और फिजिक्स कहाँ आ गया साथ में, पढ़ा है मैंने. हिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती थी. अब वो तो अब देखो, मेरे को एक चीज़ तो पता है, यहाँ बैठे हुए को इतना तो लग रहा होगा. चलो आई डू वन थिंग. कैन यू प्लीज स्टैंड अप? या ऑफ कोर्स. एंड यू एज वेल. या कैन यू प्लीज टेल मी कि तुमने इतना टाइम मेरे को सुना, क्या लगा मेरे बारे में. कोई एटलीस्ट 4 things, 2 things that you think about me, 2 things that you think about me. हाँ, like please come. The stage is yours. You are very known and popular. Yeah, exactly. Please. You had a phase of darkness also. Really? I'll love to hear about it. So if you could tell me कि तुम लोग ने मेरे बारे में क्या सोचा. What type of a person I am? क्या करती होंगे मैं, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या होंगे वही बता दो आप. एक कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट. क्या सब्जेक्ट? जैसे मैथ्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा? साइकोलॉजी. कोई भी कुछ भी ऐसे गप्पा मार दो यार. तुम इंजीनियर एक्सपर्ट होते हो गप्पा मारने में, मेरे को पता है, देखा है मैंने.
बोल दे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोल दे। अब मैं बताऊं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी एंड फिजिक्स। क्या 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 झटका लगा। हाँ, आई लव बायोलॉजी। मेरे को साइंस बहुत पसंद है और उसमें मैं बहुत आगे भी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं रट्टी किताबें नहीं पढ़ती, दिमाग यूज़ करती हूँ। दिया है ना इसके अंदर जो, वो बायोलॉजी बहुत फेवरेट है मेरी। आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। मेरे को बोला भी सही है हाँ, कि मेरे टीचर्स ने खुद मेरे को बोला है कि तू डॉक्टर बन सकती है, तेरे में वो है चीज़ बनने के लिए। मैंने ना बोल दिया, नहीं बनना मुझे। पढ़ना है पढ़ाई की तरह रखो, मेरे को उसको कमर्शियलाइज नहीं करना है। समझ रहे हो कमर्शियलाइज का क्या मीनिंग है इसमें? मेरे को वो मेरी नॉलेज जो इतनी सी है, इतने बड़े दुनिया की हेल्प करने में कम पड़ जाने वाली है। जो मेरी नॉलेज है राइटिंग की शायद इतनी होगी, पर इतने बड़े दुनिया में आई कैन वर्क विथ इट इंस्टेड ऑफ दिस मच। तो दोज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। और क्या जज किया होगा तुमने मुझे देख के? मैं क्या करती होगी पूरे दिन? वन एक्टिविटी दैट यू थिंक दैट आई विल बी डूइंग द होल डे। क्या लगता है क्या कर रही होंगी मैं? एनीथिंग, जो भी दिमाग में आ जाए। थिंकिंग, आई नेवर थिंक अबाउट एनीथिंग। मेरे को है ना ये बहुत चीज़ें मेरे टीचर्स ने बोली है कि मैं सोचे बिना बोलती हूँ। कैसा होता है पता है? कोई टीचर मेरे को बोलता है, मैं 2 मिनट में जवाब दे देती हूँ ऐसे ही मुंह पे। मेरे को मुंहफट बोलते हैं ना, वैसी टाइप की हूँ मैं, सोचे बिना मैं बोलती हूँ। इतना जो लग रहा है ना कि मैं फिलोसॉफिकल हूँ, कुछ नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसी हूँ वैसी ही हूँ, बिल्कुल सोचे बिना आई थी यहाँ पे। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, सो अब देखा तुमने बेसिकली लोगों को क्या लगा? मेरे को साइकोलॉजी अच्छी आती होगी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी। बिल्कुल नहीं था। मेरे को कभी कभार ना ऐसे देख के सोना आ जाता था, नींद आ जाती थी साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते। पढ़ा है मैंने साइकोलॉजी, पसंद बहुत था, किताब नहीं पढ़नी थी बस। अब देखा तुम लोगों ने मेरे को जज कर लिया मेरे 30 मिनट के चीज़ से कि मेरे को साइकोलॉजी पसंद होगा, मेरे को ये पसंद होगा। क्या लगता है मेरे को? आधे लोगों को मेरे को ऐसा लगता है, पक्का सोच रहे हो कि मैंने टैटू भी करवाया होगा, कान में पियर्सिंग करके मस्त। वो पता है वो एक लुक होता है आर्टिस्ट का, वैसे चल रही होती मैं। ऐसा सोचा होगा किसी ना किसी ने, पर आई एम नॉट दैट पर्सन। तुम लोग ने सोच लिया मेरे बारे में 30 मिनट में, मेरे को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ता है मुझे? नहीं। तुम लोगों को कोई थर्ड पर्सन आके कुछ भी बोल जाएगा, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। आज एक जन अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल दूँ कि मेरे को उस लड़के के चश्मे अच्छे नहीं लग रहे, लाल तेरे पे भाई सूट नहीं होता, तो ब्लू पेन, उसको अंदर से लगेगा कि कोई थर्ड पर्सन आके मेरे को बोल गया, उसको अफेक्ट होगा वो चीज़। वही चीज़ नहीं करनी है। कोई भी थर्ड पर्सन आके तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करे, ओपिनियन दे, उसकी जगह पे रखो। बोलो तुम्हें जो बोलना है बोलो, ठीक है, मैं अपने अंदर वो नहीं डालने वाली। दैट्स इट।